یہ سمپل کیس ہے اور اس میں فیصلہ انشاءاللہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہی آئے گا. اگر اب عمران خان کو ہٹا دیتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ اچھے ہیں, نہیں تو آپ کے ساتھ ہم بہت بری کریں. السلام علیکم. الیکشن کمشنر کا خود جو اپنا رویہ ہے نا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں, ڈیلیبریٹلی کہہ رہا ہوں, وہ توہین آمیز ہے. اس طرح کا الیکشن کمشنر دیکھا ہی نہیں کہ اس کو فائنانس منسٹر کہہ دے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یا وہ اس کو ڈیفنس منسٹر کہہ دے میں فوج نہیں دے سکتا, یا اس کو انٹیریئر منسٹر کہہ دے میں رینجرز نہیں دے سکتا, اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہا. اس کی ڈیوٹی ہے الیکشن 90 دن کے اندر کرانے, اور یہ سارا 2 آدمیوں سے صورتحال بگڑی ہے, اور 2 آدمی کنجی ہیں یہ بگڑی ہوئی صورتحال کو درست کرنے کی اور اصل معاملے تک پہنچنے. ایک ہے چیف الیکشن کمشنر, کیوں اس نے 90 دن کے اندر یہ الیکشن صوبائی حکومتوں کے نہیں کرائے, پنجاب کے اور خیبر کے. اور دوسرا ہے آئی جی پنجاب, اس پہ بھی میں آؤں گا. وہ ہے کنجی 9 مئی کی چابی کھل جاتی ہے اگر آپ اس سے پوچھ لیں, وہ بتا دے, سچ بتا دے کہ کیا کس نے اس کو روکا, وہ خود کیوں, ورنہ وہ خود ذمہ دار ہے, خود اپنی فرائض کی انجام دہی میں بالکل ایک ناکارہ نظر آنا. جل رہے 18 مقامات پہ فوجی تنصیبات جل رہی ہیں. آپ نے کیا ہر ایک ایس پی کو کہا ہوا ہے کہ نہیں جانا ان کے قریب؟ وہ ایس پی اگر دیکھتا, اگر اس کو انسٹرکشن نہ ہوتی تو 18 مقامات میں سے کم از کم 10 مقامات پہ تو پولیس پہنچی ہوتی, ایس پی پہنچا ہوتا کہ یہ کیوں یہ کر رہا ہے. پر یہ آئی جی نے, یہ آئی جی پنجاب وہ بتا سکتا ہے کہ یہ کس نے کیا. دوسرا اب چیف الیکشن کمشنر کا. چیف الیکشن کمشنر صاحب, آپ نے صوبائی الیکشن 90 دنوں میں نہیں کرائے. اب لوگ کہہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک نئی موو بن رہی ہے کہ وفاقی نگران بھی ان کو بھی پرمننٹ کر لیں گے. ان کو پہلے اختیار دے دو کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی مطلب ہے پوری خود مختار ہو ان کی کابینہ نگران وزیر اعظم کی. اور نگران وزیر اعظم لگانا کس نے ہے؟ شہباز شریف نے اور راجہ ریاض نے. کسی پہ وہ تو جو الٹیمیٹلی شہباز شریف یا نواز شریف کہے گا اس نے ان کے ٹکٹ پہ ہی لڑنا ہے, وہ مانے گا. یہ تھوڑا سا وہ دکھائے گا غصہ کہ اسحاق ڈار کو نہیں مانتا, لیکن اس نے اسی لائن پہ دستخط کرنے ہیں جس لائن پہ شہباز شریف یا نواز شریف کہیں گے. تو یہ تو ملی بھگت ہوگی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ملک کا, قوم کا, کہ جو پرپز ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان ایک ہم آہنگی ہو, اور ایک سوچ کے تحت وہ ایک آدمی کو منتخب کریں, نامزد کریں جو کہ قطعی طور پہ غیر جانبدار ہو. یہاں اب یہ نگران لا رہے ہیں جانبدار, اور ان نگرانوں کو یہ پنجاب اور خیبر کی طرح ان کی میعاد لامتناہی انڈیفینٹ. اب پنجاب کا کس کو پتہ ہے کب یہ بیٹھے. اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, he should have said go home. He has to conduct elections in accordance with law and the constitution and fair and free elections. So میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں نے کوئی معافی نہیں مانگنی الیکشن کمیشن سے. میں اگر وہ مجھے نوٹس بھیجتے ہیں, میں ان باتوں کو پروف کروں گا, ثابت کروں گا اپنی صفائی میں, اور بہت کچھ ثابت کروں گا. آپ وارنٹ نکال دیتے ہیں. ایک آدمی, میں تو خود بڑا اس سے پریشان ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی, پر ایک آدمی اس میں کے خلاف آپ 200 مقدمے بنا دیں, وہ کہاں سے انصاف حاصل کرے گا؟ کدھر روز اس کو 6-6 7 مقدموں میں حاضری لگانی پڑتی ہے. آج نوٹس دیا ہے الیکشن کمیشن نے, کل اس کے وارنٹ جاری کیے ہیں, ناقابل ضمانت. ایک پارٹی لیڈر ہے, ہمارے بھی پارٹی لیڈرز ہیں. کل آپ چیئرمین بلاول کے یا صدر زرداری کے وارنٹ جاری کر رہے ہوں گے, پھر آپ نواز شریف کے, شہباز شریف کے وارنٹ جاری کر رہے ہوں گے. یہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا؟ اگر آپ نے اسحاق ڈار کو طلب کیا ہوتا کنٹیمپٹ میں,
ख्वाजा आसिफ को किया होता, राना सनाउल्लाह को किया होता, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिन्होंने खुल के कहा कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानते कि 14 मई को इलेक्शन हो। ये इस इलेक्शन कमिश्नर ने जाके वहाँ सुप्रीम कोर्ट को कहा जी मैं पहले कहा कि मैं इलेक्शन करा लूँगा 30 अप्रैल को, फिर इशारा मिला तो जाके कहा मैं नहीं करा सकता इलेक्शन, और ये मानते नहीं हैं। इलेक्शन कमिश्नर और आईजी पंजाब ये दो बंदे हैं जो इस उलझनों से जो सब के जहनों में है पाकिस्तानियों के, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, निगरान कौन होगा निगरान कौन नहीं होगा, क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, ये सब इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब के ज़िम्मे आता है। और मैं पहले कह रहा हूँ मैं डिफेंड करूँगा अपने आप को, आई विल सीक माई राइट टू डिफेंड। और दूसरी बात ये है कि ये जो आईजी पंजाब है, जैसे मैंने कहा, उसको ये बताना है कि 18 दिफाई तनसीबात पे उसके जुरिस्डिक्शन में सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ, वो हमले हुए तो उसने क्या किया, क्यों नहीं कुछ किया। साहब आप पे इल्ज़ाम है कि जस्टिस तारक के साथ जस्टिस तारक ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद पूरी बात आपका केस जब फिक्स हो गया तो इसमें क्या कहें? यार ये बड़ी ज़्यादती है और जस्टिस तारिक की जानिब से बहुत ज़्यादती है। चीफ जस्टिस इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल गलत है तारिक साहब की बात कि जी अगले दिन केस लग गया। हम मिले हैं लतीफ़ खोसा और मैं चीफ जस्टिस को सिर्फ ये कहने गए कि आप बेंच, हमने कहा हमने पिटीशन में लिखा कि फुल कोर्ट बेंच बनाए, हमने कहा कि जी हमारी तरफ से फुल कोर्ट आप बेंच बना दें और कल लगा दें। हमने कहा ये हमारी इस्तदा थी, उन्होंने कहा कल वल तो हम देखूंगा मैं कब लग सकता है, आप फारिग हैं थोड़ा, चाय की प्याली पिला के और आ गए। अब इस पे लगा रहे हैं कि जी ये पिटिशनर क्यों किया। ये मेरा ज़ाती केस नहीं था, ये मेरा ज़ाती केस नहीं था, कोई मेरा प्लॉट नहीं था कब्ज़ा किया जा रहा, कोई गवर्नमेंट कब्ज़ा कर रही थी, कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं था मिलना जो इन्होंने मेरी डिग्री का कैंसिल कर दिया। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, ये मुफाद आमा का केस है कि फ़ौजी अदालतें सिविलियन को ट्राई नहीं कर सकती। और ये बड़ी सिंपल और सीधी इसमें मंतक है कि फ़ौजी अदालतें, अगर फ़ौजी अदालतें लग सकती मौजूदा हैं इनके तहत, तो फिर 21वीं और 23वीं तरमीम करने की क्या ज़रूरत थी फ़ौजी अदालतों को के नफाज के वास्ते, क्या ज़रूरत थी। अब ये सिंपल केस है और इसमें फ़ैसला इंशाअल्लाह फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ ही आएगा। रही ये बात कि वो तारिक मसूद साहब वो कहते हैं अगले दिन लग गया, अगले दिन नहीं लगा। हफ्ते को सैटरडे को हम मिले हैं सुबह कबल दोपहर, और ये जुमेरात को हफ्ते और जुमेरात में कौन सा दिन हुआ, एक दिन हुआ जुमा, यानी छठे दिन ये लगे। एक दिन निकाल दो साथ में से, छठे दिन जाके ये केस लगे। अब चीफ जस्टिस ने उसमें अपना मशवरा भी किया है, लोगों से किया होगा, अपने कुलीग से बेंच बनाने का भी सोचा होगा। मैं उसमें कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है। और एक पब्लिक इंटरेस्ट के कहते हैं जी आप फरीक हैं, फरीक पिटिशनर के साथ चला गया, पिटिशनर को भी जाते हैं। चीफ जस्टिस के पास आपको जाना पड़ता है अगर आप केस उसी दिन या अगले दिन लगवाना चाहते हो। नहीं मानी बात चीफ जस्टिस ने हमारी, पर ये तारिक साहब कहते हैं नेक्स्ट डे लग गया। अब तारिक साहब ने मेरी इतनी रसवाई इसमें की है, ही ओज मी एन एक्सप्लेनेशन। मैं कुछ नहीं उनके बारे में कहना चाहता था और इसको मैंने खामोश। इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो आप वकील बनेंगे उनके? यार वकालत मैं उनकी नहीं मैंने की, मैं अब स्लो डाउन हो वकालत के, आप देख रहे हैं इसलिए। पर मैं उसका इस मामले में देखो, एक बंदा है 200 केस उसमें बना दिए। अब वो 200 केस लेके किधर किधर पेश हो सकता है, कोई मतलब है, कोई ज्यादती की भी इंतहा होती है इसमें, जो वाकई दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं मिलती। और ये हम अपने आप को रुसवा कर रहे हैं। आज ये हो रहा है इमरान खान के साथ, कल ये दीगर पार्टी हेड्स के साथ भी होगा, और फिर हम कहेंगे कि जी हमें लोग कहेंगे आपने खुद भी यही किया था। खुशखबरी है इमरान खान के लिए?
आने वाले दिनों में कि देखो, जो केस तो सितंबर में अगस्त के अंदर क्या देख रहे हैं? केस उसके खिलाफ कोई नहीं बनता। तोशा खाना है, तोशा खाना के केस में अगर इमरान खान को सज़ा हो गई तो आप समझे अगली गीटी गिरती नवाज शरीफ की है। और बदकिस्मती से मेरी पार्टी का वो सीनियर लीडर है गिलानी यूसुफ रज़ा, उसकी भी गीटी गिनती। ये इसका इम्तिहान ये होगा तोशा खाना कि क्या वो डिफेंस को, सफाई को, पिछला रिकॉर्ड, शौकत अजीज़ का रिकॉर्ड, ज़फ़रुल्लाह जमाली का रिकॉर्ड, ये पिछले रिकॉर्ड भी मियां नवाज शरीफ का रिकॉर्ड, वज़ीर आज़म जो रहे, इनके रिकॉर्ड वो दिखाते हैं, पेश करते हैं, अदालत तलब करती है, डिफेंस को दिखाए जाते हैं। अगर ये रिकॉर्ड नहीं दिखाए जाते, जिस तरह अगर आईजी को शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता, आईजी पंजाब को, उस वक्त तक ये 9 मई का कोई फैसला नहीं हो सकता, यकीनी फैसला कोई नहीं हो सकता उस वक्त तक। दूसरा, इसी तरह तोशा खाना में अगर आप ये प्रैक्टिस कि क्या प्रैक्टिस थी शौकत अजीज़ के ज़माने में, क्या प्रैक्टिस थी ज़फ़रुल्लाह जमाली के ज़माने में, ये नहीं दिखाते तो फिर आप ये केस नहीं बना सकते, ना जीत सकते। प्रोसिक्यूशन नाकाम होती है और अदालत की जानिबदारी वाज़े और ज़ाहिर हो जाए। अब हाँ, वो एक और जो केस बनाया साइफ़र, मैं बता रहा हूँ कि केस तो उसके खिलाफ नहीं बनता। साइफ़र में आप ये देखें कि साइफ़र को डी क्लासीफाई कौन कर सकते? साइफ़र है, साइफ़र पे कोई तनाज़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है कि साइफ़र है या नहीं है। वो साइफ़र जो आया है वो साइफ़र है एक पैगाम जो कि एम्बेसडर ने, पाकिस्तान के एम्बेसडर जो बड़ा सीनियर अफसर है सिविल सर्विस, फॉरेन सर्विस का, उसने पैगाम दिया है और वज़ीर आज़म को भी और आर्मी चीफ को भी गया है, DGISI को भी गया है, फॉरेन सेक्रेटरी को भी गया है, फॉरेन मिनिस्टर को भी गया है। और उसने साहब ये कहा है कि मुझे ये बात कही है डेविड ब्लू, वो जो अमेरिकन सफारतकार है, उसने, सीनियर अमेरिकन है, उसने ये कहा है मुझे कि अगर अब इमरान खान को हटा देते हो तो हम आपके साथ अच्छे हैं, नहीं तो आपके साथ हम बहुत बुरी करेंगे। अब ये उसने कहा है और ये दर्ज है उस साइफ़र में